اسلام کے اتہاس میں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو نہ کیول اپنی بہادری اور ایمان کی دृڑھتا کے لیے یاد کی جاتی ہیں، بلکہ وہ سماج کے سب سے نچلے پائیدان سے اٹھ کر اونچائیوں کو چھونے والی پریرنا دائک کہانیاں بھی ہیں۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ایسی ہی ایک مہان شخصیت ہے۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے جن کی اذان کی آواز نے مکہ کی کعبہ پر پہلی بار اسلام کی جیت کا اعلان کیا۔ ان کا جنم غلامی کی زنجیروں میں ہوا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کافروں کی سب سے کرور یاتناؤں نے بھی انہیں ڈگا نہیں سکا۔ ان کی کہانی نہ کیول آستھا کی طاقت دکھاتی ہے، بلکہ سمانتا، دھیریہ اور نسلیہ بھید بھاو کے خلاف اسلام کی شکشا کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی حضرت بلال کے جنم سے لے کر ان کے وفات تک کی پوری گھٹناؤں کو سمیٹے گی، جس میں ان کا نکاح، شادی بھی وستار سے شامل ہوگا۔ ہم حدیثوں، سیرت کی کتابوں اور وشوسنیہ ایتہاسک سروتوں کے آدھار پر اس کی ویاکھیا کریں گے۔ ان کی زندگی لگ بھگ 60 برس کی رہی اور انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مہتوپورن گھٹنا میں حصہ لیا۔ آئیے اس پریرنا دائک یاترا کو شروع سے سمجھیں۔ پرارمبھک جیون، غلامی کی زنجیروں میں جنم۔ حضرت بلال ابن رباح کا جنم لگ بھگ 580 عیسوی یا ہجری سے 43 سے 53 سال پہلے میں مکہ میں ہوا۔ مکہ اس سمے عرب پرائدویپ کا ایک ویاوسائک کیندر تھا جہاں قریش قبیلے کا راج تھا، لیکن بلال کا جنم ایک غلام پریوار میں ہوا جو اس سماج میں سب سے نچلا درجہ تھا۔ ان کے پتا کا نام رباح تھا جو ایک عرب غلام تھے۔ کچھ روایتوں میں انہیں بنو جمح قبیلے سے جوڑا جاتا ہے، اور ماں کا نام حمامہ تھا جو حبشہ، آدھنک ایتھیوپیا کی راجکماری تھی۔ حمامہ کو بچپن میں ہی یدھ کے دوران قید کر کے غلام بنا دیا گیا تھا اور مکہ لا کر بیچ دیا گیا۔ بلال کا رنگ گہرا کالا تھا، قد لمبا اور پتلا، بال گھنے، ناک اونچی، آنکھیں چمکدار ہلکے بھورے رنگ کی اور آواز گہری و مدھور۔ وہ بچپن سے ہی محنتی اور وفادار غلام کے روپ میں جانے جاتے تھے۔ ان کا مالک امیہ ابن خلف تھا جو بنو جمح قبیلے کا ایک پرمکھ ویکتی اور کافروں کا ایک کٹر دشمن تھا۔ امیہ کے پاس مکہ کے مشہور بتوں کی چابیاں تک بلال کے پاس رکھی جاتی تھی، جو ان کی ایمانداری کو درشاتا ہے، لیکن عربی سماج میں غلاموں کو انسان کی بجائے سمپتی سمجھا جاتا تھا۔ نسلیہ بھید بھاو اتنا گہرا تھا کہ حبشی، افریقی مول کے بلال کو حبشی کہہ کر ترسکار کیا جاتا تھا۔ بچپن میں بلال کو بت پرستی سے گھرنا تھی۔ وہ مورتی پوجا کو برا مانتے تھے، لیکن اسلام آنے سے پہلے کوئی راستہ نہ تھا۔ مکہ میں غلاموں کی زندگی کٹھور تھی۔ وہ دن بھر کام کرتے، راتیں بھوکے سوتے اور مالک کی ایک اشارے پر سزا پاتے۔ بلال کے بھائی کا نام خالد اور بہن کا نام اقرا یا گھفیرا تھا۔ پریوار غریب تھا، لیکن بلال کی آدھیاتمک پیاس ہمیشہ بنی رہی۔ یہ وہی بلال تھے جو بعد میں اسلام کی پہلی شہادت دینے والوں میں سے ایک بنے۔ اسلام قبول کرنا آستھا کی پہلی پریکشا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں نبوت کا اعلان کیا تو مکہ میں اسلام کی پہلی کرن پھیلی۔ بلال ان پہلے 9 لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ روایتوں کے انوسار وہ ابو بکر کے بعد دوسرے یا تیسرے مسلمان بنے۔ پیغمبر کی دعوت سنتے ہی بلال کا دل کہہ اٹھا، یہ وہی ستیہ ہے جو میں کھوج رہا تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا کافروں کی دشمنی۔ بلال کے مالک امیہ کو جب پتا چلا تو وہ کرودھ سے بھر گئے۔ وہ بنو جمح کے ایک دھنی ویاپاری تھے اور بت پرستی کے رکشک۔ انہوں نے بلال کو دھمکایا، اسلام چھوڑو ورنہ سزا ملے گی، لیکن بلال نے انکار کر دیا۔ امیہ نے کہا اللہ ایک ہے، تو بلال نے کہا احد احد، ایک ایک۔ یہ ان کا جیون کا منتر بن گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بلال نے گپت روپ سے پیغمبر سے ملاقات کی۔ پیغمبر نے انہیں صلاح دی کہ یاتناؤں کا سامنا دھیریہ سے کریں۔
बिलाल की बहादुरी ने अन्य गुलामों को भी प्रेरित किया। अम्मार इब्न यासिर और सुहैब जैसे साथी भी इसी दौर में मुसलमान बने, लेकिन बिलाल पर यातनाएं सबसे भयानक हुई। यह दौर मक्का का सबसे काला अध्याय था, जब कुरैश ने मुसलमानों को कुचलने की कोशिश की। बिलाल की कहानी इस्लाम की शुरुआती लड़ाई का प्रतीक बनी। यातनाओं की भयावह कहानी, ईमान की आग में तपना। बिलाल की यातनाएं इतनी क्रूर थी कि सुनने वाला कांप उठे। उमैया ने उन्हें दोपहर की तपती धूप में नंगा लिटा दिया, उनके हाथ पैर बांध दिए और सीने पर भारी पत्थर रख दिया। गर्म रेत पर लेटे बिलाल चिल्लाते, लेकिन केवल अहद अहद कहते। उमैया चाबुक से पीटते, लेकिन बिलाल टूटे नहीं। अबू जहल जैसे काफिरों ने भी उन्हें सताया। वे बिलाल को मक्का की सड़कों पर घसीटते, बच्चों को बुलाकर तिरस्कार करवाते। एक बार उमैया ने कहा, लात और उज्जा बुतों के नाम को स्वीकार कर, वरना मर जाएगा। बिलाल ने कहा, अहद। यातनाएं इतनी बढ़ी कि बिलाल बेहोश हो जाते, लेकिन होश आने पर वही नारा। पैगंबर सव को जब खबर मिली तो वे दुखी हुए और दुआ की। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर बिलाल मर गए तो? पैगंबर ने कहा, नहीं, अल्लाह उन्हें बचाएगा। ये यातनाएं महीनों चली। बिलाल की त्वचा फट गई, लेकिन दिल मजबूत रहा। उनकी दृढ़ता ने कुरैश को चकित कर दिया। एक रिवायत में है कि बिलाल की मां हमामा ने भी यातनाओं का सामना किया। यह दौर इस्लाम की परीक्षा था, जहां गुलामों ने राजाओं से ज्यादा बहादुरी दिखाई। बिलाल की कहानी आज भी उत्पीड़ितों के लिए प्रेरणा है। आजादी की सुबह अबू बकर का योगदान। यातनाओं की खबर पूरे मक्का में फैल गई। अबू बकर ने फैसला किया कि बिलाल को आजाद कराना होगा। वे उमैया के पास गए और कहा, तुम एक व्यक्ति को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो कहता है अल्लाह मेरा रब है? उमैया ने कहा, हां, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। अबू बकर ने कहा, मैं उसे खरीद लूंगा। उमैया ने 9 औन सोना मांगा। अबू बकर ने तुरंत दिया। कुछ रिवायतों में कीमत 200 से 360 दिरहम बताई गई। बिलाल आजाद हो गए। वे पैगंबर सव के पास गए और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की दया। पैगंबर ने उन्हें गले लगाया और कहा, अबू बकर ने जन्नत का द्वार खोल दिया। अबू बकर ने अन्य गुलामों अम्मार की मां सुमैया, पहली शहीद, खब्बाब आदि को भी आजाद किया। बिलाल अब स्वतंत्र मुसलमान बने, लेकिन उनकी वफादारी पैगंबर के प्रति और मजबूत हो गई। यह घटना 615 ई के आसपास हुई, हिजरत से पहले। मदीना हिजरत, नया जीवन और भाईचारा। मक्का में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़े तो पैगंबर ने हबशा हिजरत का आदेश दिया। बिलाल हबशा गए, लेकिन बाद में मक्का लौट आए। 622 ई में मदीना हिजरत हुई। बिलाल अबू बकर के साथ गए। मदीना पहुंचकर पैगंबर ने मुहाजिरों और अंसारों में भाईचारा जोड़ा। बिलाल का भाई अबू रुवैहा या उबैदा इब्न हारिस बना। मदीना में बिलाल पैगंबर के घर के पास रहते। वे गरीबी में जीते, लेकिन खुशहाल। यहां इस्लाम मजबूत हुआ। नमाज के लिए अजान की जरूरत पड़ी। अब्दुल्ला इब्न जैद को सपने में अजान आई। पैगंबर ने बिलाल की मधुर आवाज सुनी और कहा, बिलाल, तुम मुअज्जिन हो। बिलाल ने पहली अजान दी। उनकी अफ्रीकी उच्चारण से अशदूस की बजाय असदूफ हो जाता, लेकिन पैगंबर ने कहा, यह अल्लाह को पसंद है। मदीना वालों ने हंसने की कोशिश की, लेकिन पैगंबर ने डांटा, बिलाल ने मक्का में क्या सहा, तुम नहीं जानते। बिलाल की अजान सुनकर लोग मस्जिद की ओर दौड़ते। वे इकामा भी देते। ये उनकी जिंदगी का स्वर्णिम दौर था। जंगों में बहादुरी, बद्र से लेकर खंदक तक। बिलाल हर जंग में पैगंबर के साथ रहे। बद्र की जंग 624 ई में कुरैश का लश्कर था। बिलाल ने अपने पूर्व मालिक उमैया को पहचाना और तीर से मार गिराया। पैगंबर ने कहा, बिलाल, तुमने बदला लिया। उहुद,
625 ई में वे घायल हुए लेकिन लड़े। खंदक 627 ई में कुद्र को सहारा दिया। हुदैबिया 628 ई में शांति संधि में हिस्सा। फतेह मक्का 630 ई का दिन यादगार। काबा पर चढ़कर बिलाल ने अजान दी। काफिर स्तब्ध। ये वही जगह थी जहां वे यातनाएं सहते थे। अब इस्लाम की जीत का ऐलान हो रहा था। पैगंबर ने बिलाल को झंडा दिया जिसके नीचे मक्का वाले शरण ले सके। बिलाल की आवाज ने इतिहास बदल दिया। निकाह, प्रेम, सम्मान और पैगंबर की सिफारिश। हजरत बिलाल का निकाह इस्लाम के सिद्धांतों का सुंदर उदाहरण है। विभिन्न रिवायतों में उनके 3 या अधिक निकाह का जिक्र है। पैगंबर ने खुद उनकी शादी करवाई जो उनकी ऊंची जगह दर्शाता है। पहला निकाह, अबुल बुकैर के बेटों ने पैगंबर से अपनी बहन के लिए रिश्ता मांगा। पैगंबर ने कहा, बिलाल से शादी कराओ। वे हिचकिचाए क्योंकि बिलाल हबशी थे। पैगंबर ने 3 बार कहा, बिलाल जन्नत के रहने वाले हैं। अंत में शादी हो गई। यह निकाह बनु अबी बुकैर कबीले से था। दूसरा, हजरत अब्दुर रहमान इब्न अफ की बहन हला बिन्त अफ या हिंद हला बिन्त अफ से। हिंद खौलानिया यमन से भी उनकी पत्नी बताई जाती है। एक रिवायत में बनु जुहरा कबीले की लड़की से शादी। पैगंबर ने कहा, बिलाल स्वर्गवासी है। बेहतर रिश्ता कौन? यमन यात्रा के दौरान बिलाल ने एक परिवार से रिश्ता मांगा। उन्होंने कहा, हम हबशी गुलाम थे, अल्लाह ने आजाद किया। परिवार ने पैगंबर से पूछा तो उन्होंने बिलाल की तारीफ की। शादी हो गई। सीरिया में अंतिम दिनों में बिलाल ने एक अरब परिवार को रिश्ता भेजा। उन्होंने कहा, मैं हबशी हूं, अगर पसंद न हो तो मना कर दे। लेकिन पैगंबर के साथी होने के कारण स्वीकार हो गया। कुछ स्रोतों में हिंद नाम की पत्नी का जिक्र जो उनके बच्चों के साथ हबशा चली गई। हालांकि यह विवादास्पद है। बिलाल के निकाहों में कोई संतान नहीं बताई जाती। हालांकि कुछ में बेटा उमर या हलाल का जिक्र, लेकिन मुख्य रिवायतों में बच्चे नहीं। उनके निकाह समानता सिखाते हैं, गुलाम से खातून तक। पैगंबर ने कहा, इस्लाम में नस्ल रंग का भेद नहीं। बिलाल की शादियां इसकी मिसाल है। यह दौर था जब बिलाल मदीना में खलीफा के खजाने के मंत्री भी बने, लेकिन वे सादगी से जीते। उनकी पत्नियां उन्हें सम्मान देती। एक रिवायत में पत्नी ने मरते समय कहा, कितना दर्द। बिलाल ने कहा, खुशी है, कल पैगंबर से मिलूंगा। निकाह के बाद बिलाल का पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहा। वे विधवाओं, अनाथों की मदद करते। पैगंबर ने उन्हें जन्नत के अहल कहा, जो उनके निकाहों में भी दिखा। पैगंबर के बाद का जीवन, दुख और जिहाद। 632 ई में पैगंबर का वफात हुआ। बिलाल टूट गए। फजर की अजान देते समय रो पड़े। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बिना आपकी अजान कैसे? अबू बकर खलीफा बने। बिलाल ने बहद दी, लेकिन दुख में मदीना छोड़ना चाहा। अबू बकर ने रोका, मदीना में रहो, खजाना संभालो। बिलाल ने पैगंबर के घर की देखभाल की, कब्र पर पानी डाला। उमर के खलीफा बनने पर 634 ई बिलाल ने जिहाद की इजाजत मांगी। उमर ने कहा, बुजुर्ग हो, रहो। लेकिन बिलाल ने कहा, मैं जंग के लिए जिया। उमर ने सीरिया जाने दिया। वहां मुसलमानों ने कहा, अजान दो। बिलाल ने दी। सभी रो पड़े। ये उनकी आखिरी अजान थी। सीरिया में बिलाल खजाना संभालते, जिहाद में जाते। एक सपने में पैगंबर आए तो मदीना गए, अजान दी, उमर रोए, फिर सीरिया लौटे। वफात, जन्नत की ओर प्रस्थान। 638 से 642 ई 20 हिजरी में दमिश्क में बिलाल बीमार पड़े। उम्र 60 से ज्यादा। पत्नी रोई, दर्दनाक। बिलाल मुस्कुराए, खुशी। कल पैगंबर, अबू बकर, उमर से मिलूंगा। वफात दमिश्क में हुई, कब्र बाब अस्सागिर में। उमर ने कहा, मुसलमानों के सरदार चले गए।